Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? Can you all clearly hear me out? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, हम आपको सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Very good. All right, let's start. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahir rahmanir rahim. All right. Consultations before appointments. Prior to appointing a new governor or even an army leader, Abu Bakr radhiyallahu anhu would consult many of his Prophet's companions, asking them about the qualities and qualifications of the potential candidates. दो चीजें करते थे वो, दो क्वालिटीज देखते थे वो। जब भी न्यू अपॉइंटमेंट्स होती थी तो वो सलाह मशवरा जरूर करते थे। इवन दो ही वाज द फर्स्ट टॉप पर्सन इन डिसीजन मेकिंग, उनके पास फुल पावर एंड अथॉरिटी थी, बट वो क्या करते थे, वो कंसल्ट करते थे। मशवरा सुनना है, आई एम श्योर यू गाइस नो अबाउट इट। तो वो क्या चीजें देखते थे, प्री रिक्विजिट्स क्या होते थे, क्वालिटीज, कि वो साहबा की या वो बंदे की क्वालिटीज क्या है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। The people whose advice he trusted most in this regard were the most eminent of Prophet's companions, the likes of Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu and Ali ibn Abu Talib radhiyallahu anhu, also before he made any final decision. यानी वो उनके जो मेन एडवाइजर्स होते थे उनमें शामिल कौन थे, उमर रदियल्लाहु अन्हु, अली रदियल्लाहु अन्हु और बाकी सारे जो सहाबास थे, who were the Prophet's companions, जो उनके साथ थे फर्स्ट ग्रेड वाले। Abu Bakr radhiyallahu anhu would consult the person he wanted to appoint, especially if he wanted to transfer a governor from one province to another. यानी जो की पोजीशंस होती थी गवर्नर की, अगर उसका ट्रांसफर भी अगर उन्होंने करना होता था तो he used to consult these people. This occurred, for instance, when Abu Bakr radhiyallahu anhu wanted to transfer Amr ibn al-As radhiyallahu anhu from the province where he had been sent by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to an army that was headed towards Palestine, an army that desperately needed a competent and experienced leader. तो उसका एग्जाम्पल है ट्रांसफर का, अमर इब्न अलास है, उनको प्रोविंस से हटाकर, जहां पर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रोविंस का गवर्नर बनाया था, तो वहां से हटाकर उनको एक आर्मी के साथ हेड करने के लिए ट्रांसफर किया गया था, जो कि फलस्तीन जा रही थी। और इस आर्मी को एक बड़े कॉम्पिटेंट, एक बड़े स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लीडर की जरूरत थी। A final decision was made only after Abu Bakr radhiyallahu anhu consulted Amr radhiyallahu anhu and asserted his willingness to be transferred. यानी वो forcefully नहीं करते थे, he used to take the permission, या you cannot say permission, यानी उनकी willingness of the person also वो लेते थे कि उनको वो राजी हो कि वो उनको जहां ट्रांसफर किया जा रहा है, they are ready to work there. On another occasion, Abu Bakr radhiyallahu anhu gave Ibn Umayyah radhiyallahu anhu the choice between governing Yemen and Hadramaut. अब ये एक दो जगह की जिक्र हो रही है कि another sahaba और another governor Ibn Umayyah radhiyallahu anhu, उनको उन्होंने choice दी कि वो यमन को गवर्न करना चाहते हैं या हैदरामौत। हैदरामौत is the name of a place. Ibn Umayyah radhiyallahu anhu chose Yemen and Abu Bakr radhiyallahu anhu appointed him as its new governor. In appointing governors, Abu Bakr radhiyallahu anhu followed the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in another way by sometimes appointing governors from among the people of the region. अब उन्होंने क्या किया तरीकाकार, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जिस जगह पे वो जिस जगह के लिए गवर्नर ढूंढा करते थे वो लोकली लोगों को रिक्रूट करते थे. दिस वाज द वे ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. So for instance, the leader of At-Taif was chosen from among At-Taif's inhabitants. इसका फायदा ये होता है कि वो लोगों के साथ उनकी वाकफियत, जान पहचान, उसके बाद जगह से उनकी वाकफियत होती है. So they are not stranger, they are not new to the place. तो उनका कंट्रोल जो है वो ज्यादा बेटर होता है क्योंकि उनकी रिलेशनशिप विद पीपल ऑलरेडी मेंटेन्ड होती है. दूसरा, उनको अपने हुदूद, अपनी बाउंड्रीज की पूरी नॉलेज होती है. Similarly, the leaders of certain tribes were chosen from among the members of those tribes. कबीले के बीच में भी यही होता था कि कबीले के बीच में से भी वो कबीले के ही लोगों को चूज किया करते थे. To be sure, it is almost always the case that any given group of people will be more receptive to a new leader when he is one of their own. यानी ये होता है ना कि अगर आप ही के जान पहचान वाला, आप ही की कम्युनिटी का, आप ही के ट्राइब का हुआ तो आपकी उसके साथ क्लोजनेस ज्यादा रहती है. यू आर मोर, यू रिलेट मोर, आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है. और इसकी जगह पे अगर कोई नया बंदा आ जाए तो उसको काफी टाइम जाता है टू अंडरस्टैंड द पीपल, टू डेवलप दैट रिलेशनशिप. तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए द सोल्यूशन इज कि उसी ट्राइब, उसी कम्युनिटी या उसी लोकेलिटी के बंदे को सिलेक्ट किया जाए. That being said, Abu Bakr radhiyallahu anhu restored to this policy only when he was certain of the sincerity, knowledge, trustworthiness and ability of the person he wanted to appoint. अब इसके लिए जरूरी था कि जो कैंडिडेट हो वो सिंसियर हो,
उसके पास अच्छा इल्म हो, वो भरोसेमंद हो और वो काबिल हो। अगर कोई ऐसी क्वालिटीज नहीं होती है तो डेफिनेटली बाहर से किसी बंदे को ट्रांसफर किया जाए या किसी नए को लाया जाए। लेकिन अगर ये क्वालिटीज उनको उनके लोकल लोगों में ही मिल जाती है तो फिर वो वहीं से ही अपॉइंट कर लेते हैं। In certain instances, Abu Bakr radiallahu anhu would merge two provinces into one. कभी कभार वो अगर समझो दो छोटे प्रोविंस है तो उसको मर्ज करके एक बना देते थे। He restored to this policy mainly in the wake of apostate wars. So, for instance, Kinda and Hadramaut, which were initially two separate provinces, were merged into one. तो इसका एग्जाम्पल है कि किंदा और हैदरामौत, ये जो दो सेपरेट प्रोविंस थे, इसको जोड़कर एक सिंगल प्रोविंस बनाया गया। Abu Bakr radiallahu anhu appointed the former governor of Hadramaut, Ziyad ibn al-Abid al-Baydi, to govern newly unified province, which now consisted of the lands of Hadramaut and Kinda. तो हैदरामौत के जो गवर्नर थे जियाद इब्न al-Abid al-Baydi, इनको जो है ये मर्ज किया हुआ, जो एक मर्ज कर दिया किंदा और हैदरामौत की प्रोविंस को। तो उन्होंने हैदरामौत के जो गवर्नर थे उनको ये मर्ज्ड प्रोविंस का गवर्नर डिक्लेयर किया। Relationship with governors. Abu Bakr radiallahu anhu's relationship with his governors were marked by a high degree of mutual respect. बहुत ज्यादा एहतराम वाला रिलेशनशिप था दोनों, यानी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु with his governors, with his team of governors. Governors, irrespective of how far they live from Al-Madinah, remained in constant communication with him. यानी communication is the key for any organization to become successful. अगर आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो अगर खुला है बिल्कुल, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, यानी जूनियर्स अपने सीनियर से और सीनियर्स अपने जूनियर से अगर खुल के ऑनेस्टली बात करते हैं, बातचीत उनकी चलती है, उनका कम्युनिकेशन ओपन है, तो ये बहुत बड़ी एक सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होने का राज है। तो उसी तरीके से नो वंडर अगर मदीना से बहुत दूर भी अगर कोई प्रोविंस है तो उनका जो कम्युनिकेशन है विद अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आप सोचिए वो जमाना टेक्नोलॉजी का नहीं था, वो जमाना हम कह रहे हैं कबूतरों से मैसेज भेजने का, घोड़े से घुड़सवार जाके एक पर्सनली एक मैसेंजर जाए, यानी इट वाज अ कम्बरसम थिंग। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस चैलेंजेस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफिकल्टीज, उनका कम्युनिकेशन बहुत ओपन था। Correspondence between governors and Abu Bakr radiallahu anhu mainly had to do with administrative issues, updates on wars being fought, or to seek advice. तो कम्युनिकेशन में क्या तीन मुद्दे होते थे मेनली। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, कुछ अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ अगर डिस्कस करना हो, अपडेट करना हो जंग के बारे में, जंग के हालात के बारे में, और फिर उसके बाद अगर कहीं पर कोई सलाह मशवरा लेनी होती थी तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। One of the main aspects of Abu Bakr's day-to-day governance involved replying to those letters and sending out orders. तो उनका जो रोजमर्रा के जो काम थे उसके अंदर सबसे ज्यादा उनका वक्त किस में जाता था? लेटर और मैसेजेस, यानी रिप्लाई करने में और मैसेजेस सेंड आउट करने में। There were also cooperation among Abu Bakr's governors to strengthen and protect their ever-expanding nation. They would write letters and sometimes meet in person. काफी कोऑपरेशन था, यानी जितने भी अभी इतने सारे गवर्नर्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश होने वाली मुस्लिम नेशंस थी, इतने गवर्नर्स, इतने प्रोविंस, इतने स्टेट्स, लेकिन इनके बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप थी और वो उसको बहुत प्रोटेक्ट करते थे और स्ट्रेंथन करते थे। कभी लेटर लिखते थे या कभी खुद आकर इन पर्सन मिलते थे। The respective governors of Yemen and Hadramaut, for instance, would often have occasion to work with each other. The Muslims in charge of the lands of Asham, Syria, and surrounding area are kept in close contact with one another. Most of those leaders were not, in fact, governors, but were generals of armies who had to meet to draw up a collective plans. तो ये जो है आसपास के जितने भी हैं, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया हुआ है यमन और हैदरामौत का, तो ये लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल एकजुट होकर काम किया करते थे। और आशाम का जो एरिया था, जो सीरिया और सराउंडिंग एरिया था, वो भी अपने साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट रखते थे। और कई बार ये सिर्फ गवर्नर्स ही नहीं बल्कि आर्मी के जनरल भी मिला करते थे और एक कलेक्टिव प्लान बनाते थे। तो यानी टीम जो थी वो बेहद स्ट्रांग थी और उनका कम्युनिकेशन बहुत ओपन था और वो कांस्टेंट टच में रहते थे। एक बात आप जहन में रखें कि नॉट ओनली प्रोफेशनल या ऑफिशियल लेवल पर कम्युनिकेशन इज अ मस्ट। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो हर रिलेशनशिप की मेन नर्व होती है, उसकी जान होती है, क्योंकि जहां पर कम्युनिकेशन बंद हो गया वहां पर आपकी रिलेशनशिप के अंदर जो है ना क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए आज की एक्टिविटी के हिसाब से मैं आप लोगों को एक चीज की
एडवाइस देना चाहूंगी आप लोगों को, अर्ज करना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन अपना कभी बंद ना करें। भले ये हम एग्जाम्पल ले लें कि स्पाउसेस के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, या माँ बाप के बीच में हो, या बच्चों का पेरेंट्स के साथ हो, या आपस में अपने सिबलिंग्स भाई बहनों के साथ हो, कोई भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, कितना भी आपको बुरा लगा हो, झगड़ा हो, दिल में कुछ बुगज हो, कुछ खराबी हो, लेकिन कम्युनिकेशन को कभी भी हैम्पर नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन को कभी भी ना रोकें। इनफैक्ट बी एक्सप्रेसिव। आपको बात करने का जो कहते हैं ना कि लहजा और तरीका जो है वो आप रिफाइन कर दें, वो आप अच्छी तरह से ट्यून अप कर दें कि आपके वर्ड्स जो हैं उससे कोई हर्ट ना हो, लेकिन कम्युनिकेशन आप बंद ना करें। चाहे कोई कितना भी दूर हो, डू सेंड सम ग्रीटिंग्स, सलाम दुआ, अपनी खैर खैरियत बताते रहें। अपने इमीडिएट फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में रहें। आपके पुराने दोस्त होंगे, स्कूल वाले दोस्त होंगे, आप उनके साथ टच में रहें। डोंट लूज कांटेक्ट, डोंट लूज कम्युनिकेशन, क्योंकि आज की तारीख में डिप्रेशन, सैडनेस, ग्रीफ, इसकी एक वजह जो है वो ये भी है कि लोग जो हैं आपस में कम्युनिकेट करना छोड़ चुके हैं। और जब आप कम्युनिकेशन छोड़ देते हो तो फिर ये होता है कि आप जो है लोगों से दूर हो जाते हो, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग लोनली। और ये जो लोनलीनेस है ना, यही वजह है कि आप देखेंगे कि ये जो सुइसाइड और ये सब जो खुराफातें होती है, उसकी वजह बनती है लोनलीनेस। तो ट्राई टू कम्युनिकेट। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी के साथ आप दिन भर बातें करते रहें, बट एक अपने दिन का हिस्सा जो है वो कम्युनिकेशन में, कनेक्शन विद योर लव्ड वंस के साथ जरूर लगाएं। एंड जस्ट एक और चीज ऐड करूंगी कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, डोंट शाई एट 4 थिंग्स, यानी 4 चीजों से कभी शर्मिंदा नहीं होना। एक पुराने कपड़े, एक अपने पुराने दोस्त, एक अपने बूढ़े माँ बाप, और एक अपनी सिंपल लिविंग। तो ये जो सिंपल लिविंग है, अपने बूढ़े माँ बाप जो हैं, आपके गरीब दोस्त जो हैं, और जो आपके पुराने कपड़े हैं, इनसे शर्माना नहीं है। और इसको यानी even though you might not want to feel very proud of it, but आपको अपने दिल से लगा कर रखना है। ठीक है? So let's continue where we stopped. Provinces and governors under Abu Bakr's caliphate. Al-Madinah, capital city of the nation where the Khalifa Abu Bakr radiallahu anhu resided. यानी अल-मदीना जो कैपिटल था उनका मेन, वहां पर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु रहते थे और उनका पूरा कंट्रोल चलता था। मक्का was governed by Utbah ibn Usayd radiallahu anhu, who had been appointed by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and reappointed by Abu Bakr radiallahu anhu. तो मक्का के कौन थे? उताब इब्न उसैद रदियल्लाहु अन्हु। अतैफ के गवर्नर थे उस्मान इब्न अबुल आस रदियल्लाहु अन्हु, और ये अपॉइंटेड थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और फिर उसके बाद लेटर रीअपॉइंटेड बाय अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु। सना कॉन्कर्ड बाय द मुस्लिम आर्मी। सना वैसे आज की तारीख में यमन के कैपिटल है, तो यहाँ कॉन्कर्ड बाय द मुस्लिम आर्मी। The leader of the conquering army, Ibn Abu Umayya radiallahu anhu, was appointed as Sana's new governor. तो सना के गवर्नर थे इब्न अबू उमैया रदियल्लाहु अन्हु। हद्रमौत के गवर्नर थे जियाद इब्न लाबिद रदियल्लाहु अन्हु। जाबिद एंड रक्का इसके गवर्नर थे टू प्रोविंसेस के अबू मूसा अल अशारी रदियल्लाहु अन्हु। खौलंस गवर्नर थे याला इब्न अबू उमैया रदियल्लाहु अन्हु। अलजुंद के गवर्नर थे मुआद इब्न जब्बार रदियल्लाहु अन्हु। नजरान के गवर्नर थे जरीर इब्न अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु। जुरिश के गवर्नर थे अब्दुल्ला इब्न नूर रदियल्लाहु अन्हु। बहरीन के गवर्नर थे अल आला इब्न अल हदरामी। इराक और अशाम again Iraq and Syria were in the process of being conquered, and so the Muslims in charge were not governors but army commanders. तो इधर अब तक के complete charge उनका नहीं हुआ था, इसीलिए army commander ही इसको govern कर रहे थे। अम्मान's governor was हुदैफा इब्न माहिसन। अमान के गवर्नर कौन थे? हुदैफा इब्न माहिसन। और यमामा's गवर्नर was सुलैत इब्न कैस। तो आप देखिए यानी ये जॉर्डन, सीरिया, इराक, यमन, मक्का, मदीना, ये पूरा एक ही माशाल्लाह प्रोविंस था, एंड इट वाज प्रीटी ह्यूज। पूरा मिडिल ईस्ट ही देखा जाए तो अंडर मदीना था, मदीने के अंदर उसके कंट्रोल में था, यानी दिस वाज दी हुदूद थी मुस्लिम नेशन की। Personal sacrifice. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu took hold of the camel's rein and said, Ali radiallahu anhu sincerely wanted to help Abu Bakr in every way possible. He understood that as long as Abu Bakr radiallahu anhu was in charge of the Muslim nation, Muslims would continue to enjoy safety and prosperity.
अली रदियल्लाहु अन्हु जो है वो सिंसियरली दिल से चाहते थे कि वो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की हेल्प करे, उनको असिस्ट करे, और उन्हें इस चीज का अंदाजा था कि जब तक ये मुस्लिम नेशन के इंचार्ज रहेंगे तो मुस्लिम्स जो हैं वो सेफ्टी और प्रॉस्पेरिटी यानी उनकी हिफाजत भी होगी और वो प्रोग्रेस भी करेंगे. Ali radiallahu anhu displayed his feelings when the Muslim army went out to fight the apostates at Dhil Qissa, a few leagues away from Al-Madinah. Abu Bakr radiallahu anhu was determined to take the fight to the apostates and resolved not just to direct the war effort but also fight himself. अब ये एक टाइम का एक एक्सपीडिशन का किस्सा बयान हो रहा है यहाँ पर कि जब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु एक जगह थी जहाँ जिसका नाम था जिल किस्सा, उधर के कुफार्स के साथ फाइट करने के लिए प्लान कर रहे थे, और ना सिर्फ वो डायरेक्ट करने वाले थे, वो खुद जंग में शामिल होने वाले थे. This would have endangered his life in a very real way. Ibn Umar radiallahu anhu reported that when Abu Bakr radiallahu anhu arrived in Zil Qissa and was seated upright on his riding animal, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu took hold of the camel's rein and said, "Where are you going? O Khalifa of the Messenger of Allah, I will say to you what the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said on the day of Uhud. Pull in your sword and do not bereave us of yourself and return to Al-Madinah." उन्होंने क्या किया? जैसे ही उन्होंने देखा अली रदियल्लाहु अन्हु ने कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु अपने कैमल पे आ रहे, तो उन्होंने उसकी लगाम पकड़ ली और कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, ओ खलीफा ऑफ द मैसेंजर, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आपको मैं एक बात याद दिलाऊं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद में कहा था. उन्होंने कहा था कि आप अपनी तलवार जो है बाहर निकालें और हम लोगों को आपसे यानी वो गाफिल ना करें, अपने से महरूम ना करें, और आप मदीना में निकल जाएं. फॉर बाय अल्लाह इफ वी बिकम bereaved of you, इस्लाम विल नेवर हैव अ सिस्टम ऑफ रूल. कहते हैं अगर आपको कुछ हो गया तो इस्लाम के लिए ये बहुत बड़ा लॉस होगा. तो इसीलिए यानी अगर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु इस जंग में अगर फौत हो जाते हैं तो फिर जो है काफिर या कुफार जो है वो विक्टोरियस हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो ये पूरा मुस्लिम नेशन का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा. तो ही वाज इंसिस्टिंग कि वो खुद जंग में ना जाए. Heeding Ali's word, Abu Bakr radiallahu anhu returned to Al-Madina. जैसे मैंने आपको कहा था कि ये लोग उस क्वालिटी को माशाल्लाह पोजेस करते थे कि अगर इनको कोई अच्छी सलाह दी जाए, अगर कोई अच्छा कि उनको अगर एक एडवाइस दी जाए तो ये अपनी ईगो में खो नहीं जाते थे, ये उस बात को ऑनर किया करते थे. उसी तरीके से अभी अली रदियल्लाहु अन्हु ने जो उनको जंगे उहद का एक किस्सा सुनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्डिंग्स दिए, और एक अच्छे से एक बहुत बोलते ना वाइज तरीके से हिकमत के साथ उनको एक बात एक्सप्लेन की. तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु डिड नॉट आर्ग्यू, डिड नॉट फील ऑफेंडेड. उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने उनकी बात को मान लिया और मदीने में लौट गए. Funeral of Fatima radiallahu anhu. Ali ibn al-Hussein said, Fatima radiallahu anha died between Al-Maghrib and Al-Isha. Present at a site where Abu Bakr radiallahu anhu, Umar radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu, Az-Zubair radiallahu anhu, and Abdul Rahman ibn Auf radiallahu anhu. When her body was placed ready for her funeral prayer, Ali radiallahu anhu said, "Step forward, O Abu Bakr radiallahu anhu, and lead us in prayer." A humble gesture on the part of Ali radiallahu anhu, and one that was reciprocated by Abu Bakr radiallahu anhu, who said, "Shall I do so while you are present, O Abul Hassan?" Ali radiallahu anhu said, "Yes, step forward, for by Allah none other than you shall pray over her." And so Abu Bakr radiallahu anhu prayed over her, and she was buried during the night. According to one particular account, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu prayed over Fatima bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and said takbir, Allahu Akbar, Allah is the greatest, over her 4 times. According to the narration of Muslim, however, it was Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu who led Fatima's funeral. This is recorded in Muslim 1759. अभी जब ये नमाज जनाजा फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की हो रही थी तो ये मगरिब और इशा के बीच में इनकी फौतगी हुई थी, एंड नमाज जनाजा को लीड करने के लिए अली रदियल्लाहु अन्हु ने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को कहा. तो उन्होंने उनसे अगेन दे यूज्ड टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उन्होंने उनको रेसिप्रोकेट किया कि आपके होते हुए मैं पढ़ूं. कहते हैं हाँ, यू आर द राइट पर्सन. तो उन्होंने नमाज जनाजा लीड की. और अलग एक दूसरे नरेशन में है कि अली इब्न तालिब ने नमाज जनाजा को लीड किया. Since we are talking about funeral of Fatima radhiyallahu anha, एक दो पॉइंट्स है जो मुझे याद आ रहे हैं which I would like to share with you. She was a lady of haya, modesty. So she was the one, यानी of course अपनी हयाती में ही she is discussing all this. अब हम में से if I may ask, हम में से कौन है जो अपनी हयाती में अपने मरने का सामान तैयार करते हैं, या अपने मरने के लिए हम एक वसीयत टाइप
छोड़ते हैं, वसिया नॉट पर्टेनिंग ओनली टू द प्रॉपर्टी, लेकिन किस तरीके से हम लोगों को कफन दफन हुआ जाए, हम अपने कफन की तैयारी करते हैं, हम अपने प्लान और डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन हमारी नमाज जनाजा पढ़ाएगा एंड ऑल दैट. वी हैव नॉट डन दैट. सुबहान अल्लाह. बिकॉज जैसे मैंने कल कहा था कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम मरने नहीं वाले ना. सो एनीवेज हमें कॉन्शियस होना चाहिए. अब इनकी कॉन्शियसनेस देखो आप, विच इंक्लूड्स हया. इन्होंने मरने से पहले ही अपनी चीजें जो है वो बता के उन्होंने डिक्टेट किया. मसलन शी सेड कि मुझे बरी करना जब डार्क हो. उसके बाद शी इज द वन जिसने कहा कि जब ये कफन बांधा जाता है तो बॉडी का शेप नजर आता है. अब आप देखें, हम लोग वी आर सो अनफॉर्चुनेट कि हम लोग अपने जीते जी इन बातों का ध्यान नहीं रखते. क्या हमारा, आई मीन इवन इफ यू से हिजाबी गर्ल्स, सैडली हिजाबी गर्ल्स जो हैं वो टाइट कपड़े, टाइट जीन्स, टाइट शलवार कमीज, टाइट अबायास पहन के बाहर जा रहे हैं. यानी मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर सेक्ट को नहीं टारगेट कर रही हूँ, मैं इन जनरल कह रही हूँ कि आप देखें कि हिजाब जो है इट इज नॉट जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ दैट यू आर रैपिंग अराउंड योर हेड एंड योर नेक. ये जो है ये इंटरनल एक्सटर्नल पूरा का पूरा आपका हिजाब होता है. आपका शेप, जिस्म का शेप, आप कोई भी ऐसी अट्रैक्टिव चीज, यानी इफ यू कैन गो बैक टू सूरह नूर एंड देन ट्राई टू फिगर आउट सूरह अज़ाब एंड ट्राई टू फिगर आउट कि अल्लाह ताला किस टाइप का हिजाब एक मुस्लिम औरत से चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि कपड़ा ट्रांसपेरेंट ना हो और वो खुद अपने में एक अट्रैक्टिव चीज ना बने. तो जितना हो सके सादा हिजाब, सादा अबाया लें. अंदर आप कपड़े बेशक पहने अपने महरम्स के साथ या अपनी गर्ल्स के साथ, वुमेन फोक के साथ, यू कैन डू. उसमें भी ऑफ कोर्स देयर आर लिमिट्स व्हिच वन शुड फॉलो, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल. लेकिन हिजाब जो है उसको समझना बहुत जरूरी है. इट इज समथिंग बिटवीन यू एंड अल्लाह अज़्ज़ा वजल. देखिए, मरने के बाद जो है औरतों का कफन 5 पीस ऑफ क्लॉथिंग है, यानी आप हेड टू टो कवर हो जाते हैं. तो जरूरी नहीं है कि आप मरने का इंतजार करें और फिर आप कवर करें अपने आप को. मरने से पहले ही अपने आप को अच्छी तरह से, जैसा मेंशन किया गया उस तरीके से अपने आप को कवर करें. द सेफेस्ट एंड द बेस्ट अबाया दैट आई पर्सनली प्रेफर इज रास अबाया, वो जो सर से आता है एंड देन उसमें ना शेप नजर आती है ना कुछ, एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल. अभी जो यूज टू है इट इज ओके, जो नहीं है मे अल्लाह मेक देम यूज टू. एनीवेज, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम जीते जी अपने हिजाब के बारे में, अपनी मॉडेस्टी के बारे में हम नहीं इतना सोचते. एंड लुक एट देम, वो अपने मरने के बाद भी अपनी हया को इंटैक्ट रखना चाहते हैं. तो शी इज द वन जिन्होंने when she was discussing it with her friends and stuff, तब उनको पता चला कि वो जो बॉडी को कवर करने के लिए एक ऊपर से शेड आती है. तो ये जो आजकल हम लोग देखते हैं ना, जो आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका उर्दू वर्ड क्या है, बट वो ऊपर जो बैर होती है वो उसको कवर करती है एंड शेप नजर नहीं आता कफन पहनने के बाद. तो उनके लिए 2 चीजों का शी सेड. वन इज शी सेड कि जब डार्क हो तब मुझे मेरा जनाजा लेकर जाए और मेरे जनाजे को वो कैरियर के अंदर कवर किया जाए जिससे कि ऊपर से ढक जाए और मेरी बॉडी का शेप नजर ना आए. सुभान अल्लाह. So these are the 2 things which I wanted to talk about related to the funeral of Fatima radiallahu anha. Abu Bakr radiallahu anhu sends out Usama's army. During the lifetime of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there were 2 major empires that bordered the Arabian Peninsula. एक था रूम और एक था पर्शियन. तो ये 2 जो थे ये बहुत बड़े मेजर एम्पायर्स थे जो कि अरेबियन पेनिनसुला को घेरे हुए थे. The former controlled large areas of land in the northern part of the peninsula. The Romans had a low opinion of the Arabs who lived in the peninsula and did not even deem it worthwhile to seize control of the entire area. So they were somewhat annoyed when they heard that the Arabs were organizing under the banner of a single religion to teach the upstart nation a lesson. The Romans made incursions into the south. अब ये पूरी तैयारी चल रही है कि धीरे धीरे उन सबको पता चल रहा है कि मुस्लिम नेशन जो है वो छोटे छोटे प्रोविंसेस एंड गवर्नर्स जो है वो साथ में ज्वाइन होकर पूरा कंट्रोल लेकर धीरे धीरे उनके ऊपर उनके अगेंस्ट में वॉर प्लान कर रहे हैं. तो रोमन्स ने क्या किया, वो साउथ से अंदर एंटर करना शुरू कर रहे थे. Meanwhile, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent messengers to the northern areas of the peninsula, collectively known as the region of Syria and surrounding regions. For example, he sent Dahya al-Kalbi radiallahu anhu with a letter to Herakl, the emperor of Rome, inviting him to embrace Islam. Herakl turned away from the truth, refusing to accept the invitation. अब ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही उसका भी किस्सा बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नॉर्थ में रोमन के जो किंग है
उधर उनके पास अपना एक मैसेंजर दहिया अल कल्बी रदियल्लाहु अन्हु को भेजा लेटर लेकर उनको इनवाइट करने के लिए। उसका नाम था हरकल, ही वाज द एम्परर ऑफ द रोम एट दैट टाइम, कि दीन इस्लाम को कबूल करे, बट उसने इनकार कर दिया। The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was faced with a difficult situation. Arabs were entering the fold of Islam in droves, and yet almost all Arabs felt the same way about the Romans. They were terrified of them. हालांकि बहुत सारे Arabs जो है वो इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, लेकिन उनको रोमन्स जो थे, रूम जो थे, उनसे एक डर और खौफ बना हुआ था, क्योंकि वो they were the largest empires of that time, Romans और Persians, तो इसलिए वो रोम से डर रहे थे। The Prophet's strategy for dealing with the widespread fear of the Roman Empire was clear. To build confidence in the hearts of the Muslim, he started an offensive against the Romans. He also wanted the Romans to doubt themselves and their control over the region. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा लग चुका था कि मुस्लिम्स जो है वो खौफजदा हैं रोम को लेकर, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना स्टार्ट किया और बहुत ऑफेंसिव हो गए रोमन्स के लिए। यानी वो अपनी डीलिंग्स में, अपनी स्पीच में उनके साथ बहुत सख्त कलिमात का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके मुस्लिम्स के अंदर कि दे आर नथिंग, और यही उनकी कोशिश चल रही थी। और उसके बाद ऐसा होता है कि the power of words, today we are talking about communication a lot again and again, कि the power of words इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक बात, आप जो बच्चे के साथ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल कम टू पेरेंटिंग, आप एक बच्चा है, आपका छोटा बच्चा, एंड ये जो तरबिया वाली एज है, या जो बच्चों की पर्सनालिटी बनने वाली एज है, राइट फ्रॉम देयर बर्थ टिल आई वुड से 6, 7, 8 years तक आप उसके पर्सनालिटी को जैसे डेवलप कर रहे हैं। अगर आपने सख्त कलिमात यूज किए बच्चे के साथ, आप कंटिन्यूसली उसको बोल रहे यू आर अ लूजर, तुम किसी काम के नहीं, तुम नालायक हो, तुम ये तुम वो, उसके जहन में वो चीजें प्रिंट हो रही है और वो उसी को बिलीव करने लगता है कि मैं लूजर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बेवकूफ हूं। आपने कहने के लिए सिर्फ कह दिया, लेकिन वो उसकी छाप उसके दिल पे और दिमाग पे लग जाती है। और ये बात आप जहन में रखें कि ये जो एक तरीकाकार है ना, ये बहुत नेगेटिव पेरेंटिंग है। और यही चीज सिर्फ अपने बच्चों के साथ नहीं, आप अपने सिबलिंग्स के साथ, आप अपने स्पाउस के साथ, या आप अपने एम्प्लॉयज के साथ जो आपके नीचे डिपेंडेंट्स है उनके साथ, बिल्कुल ये काम हम गफलत में कर लेते हैं, इन द फिट ऑफ रेज हम कर लेते हैं, हम अंडर स्ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों का जो असर होता है सामने वाले पे, वो लाइफ लॉन्ग है। इसलिए कोशिश ये करें कि आप गुस्से में भी अपने बच्चों को गाली ना दें, बददुआएं ना दें, अच्छे कलिमात यूज करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी औलाद अगर तकलीफ में होगी, आपके लव्ड वंस अगर तकलीफ में होंगे, तो वो आपको भी तकलीफ पहुंचाएगी। इसीलिए कोशिश ये करें कि गुस्से में हट जाए वो सिचुएशन से, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, पानी पीजिए और अपनी पोजीशन चेंज कर दीजिए और अच्छे कलिमात यूज करें। अल्लाहुम्मा याहदीनी व यहदीकुम अल्लाह इस्लाहकुम, ये सारी दुआएं करें, उनके लिए खड़े होकर दिल खोल के दुआएं करें, लेकिन बद्दुआ, गाली गलौज, नेगेटिव कमेंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक आई थिंक इट्स इन अंडमान निकोबार आइलैंड, वहां पर वो लोग अगर किसी ट्री को कट करना होता है ना, तो वो उसको कट नहीं करते, यानी दे डोंट कट इट आउटराइट। वो जो ट्राइब्स है वो जाकर उधर उसके इर्द गिर्द दायरा बना के उसको खूब कर्स करते हैं, गालियां देते हैं वो ट्री को। एक हफ्ते बाद वो खुद सूख जाता है। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स। सो ये जो है आप जहन में रख लें आज से कि मैं जब भी बोलूं, रिमेंबर द हदीथ, ईदर स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट। या तो आपके मुंह से वो बातें निकलें जो अच्छी हो, खैर वाली हो, या तो खामोश रह जाएं। साइलेंस इज गोल्डन। ठीक है। सो अगेन देखिए आप, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज यूजिंग द सेम फॉर्मूला। वो क्या कर रहे थे, वो उन लोगों को रोमन्स का हवा बना के नहीं बता रहे थे। ही वाज टॉकिंग वेरी offensive about them कि they are nothing and inshallah Muslims are more confident and more powerful and more strengthened। तो धीरे धीरे confidence built up कर रहे थे। The Prophet ﷺ began by sending out armies to attack the northern areas of the peninsular land that was under the control of Romans, but that were inhabitants of Arabs. In the year 7th Hijri, the Messenger of Allah ﷺ sent out an army that clashed with the force of Romans and Christian Arabs. The battle that ensued became known as the Battle of Mu'ta, and many Muslim army leaders were martyred. अब ये जो सिलसिला रोमन्स को कंट्रोल करने का शुरू हो गया, तो नॉर्थ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्मी भेजी और 7 हिजरी में
मुस्लिम आर्मी का सामना हुआ रोमन्स और क्रिश्चियन अरब्स के साथ, और ये बैटल का नाम था बैटल ऑफ मोता, और बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो हैं यहाँ पर शहीद हुए थे। जैद इब्न हारिस रदियल्लाहु अन्हु, जाफर इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रदियल्लाहु अन्हु, when the last of them died, the sword of Allah, Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, took control of the army and against tremendous odds was able to return with almost all of his soldiers back to safety in al-Madina. अब ये हुआ कि इतने important कैरेक्टर्स थे, मसलन जैद इब्न हारिस, जाफर इब्न अबी तालिब एंड अब्दुल्ला इब्न रवाहा, इन जैसे कैरेक्टर्स थे जो कि शहीद हुए थे। बट खालिद बिन वलीद, उनका टाइटल था स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, वो कैसे भी करके अपनी आर्मी को बचाते हुए मदीने में हिफाजत से पहुंचा दिए। Then in the year 9 Hijri, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam set out a huge army towards Asham. अब ऐसा हुआ कि 9 हिजरी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी आर्मी कहाँ पर भेजी? अशाम में। आर्मी जो है वो तबुक में पहुंची, बट कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स, नॉर डिड एनी फाइटिंग टेक प्लेस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड अरब ट्राइब्स एंड दैट इनहेबिटेड द रीजन। यानी भले वहां पर आर्मियां पहुंची मगर कोई जंग नहीं हुई, ना मुस्लिम्स और रोम के बीच में और ना मुस्लिम्स और अरब ट्राइब्स के बीच में, और वहां पर जो लोग रहते थे ट्राइब्स उनके बीच में भी नहीं हुई। इनफैक्ट वहां के रूलर्स जो थे आसपास के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुलह कर ली, उन्होंने पीस ट्रीटी साइन कर ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनको जिजिया पे करने के लिए राजी हो गए। तो अगर कोई मुस्लिम्स की बात ना मान रहा हो या दीन में शामिल ना हो रहा हो और वो अपने रिलीजन के साथ कंटिन्यू करना चाहता है, तो उनके लिए कंडीशन क्या थी पीस ट्रीटी में? कि उनको जो है जिजिया पे करना होगा, टैक्स पे करना होगा मुस्लिम्स को। The journey was fruitful in many other ways as well. For example, the Muslims were able to put on a strong show of force against the Romans, who were unwilling to fight against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his army. अभी देखें, अभी तक हम बात कर रहे थे कि रोम जो है वो पावरफुल एम्पायर है और उसका खौफ मुसलमानों पे बना हुआ है। अब जब तबूक में मुस्लिम आर्मी पहुंची हुई है तो रोमन्स जो है वो फाइट करना नहीं चाह रहे थे। अब आप सोचें अल्लाह ताला ने इनके दिल में कैसा खौफ डाला। यानी हम जो कई बार हम देखते हैं कि कोई एक बड़ी मुसीबत है पहाड़ों की जैसी है एंड हम उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, बट जस्ट इमेजिन फॉर अल्लाह इट इज नथिंग। तो जब आप अल्लाह के सुपुर्द अपने सारे मामलात कर लें, जब आप अल्लाह की इबादत में खालिस हो जाएं, तो बड़ी से बड़ी पहाड़ जितनी प्रॉब्लम भी जो है वो छोटी मक्खी की तरह हो जाएगी। अब आप देखिए रोम जो है वो खुद नहीं फाइट करना चाह रहा है नबी की आर्मी के साथ, सुभान अल्लाह। Also, during the course of the long and arduous journey from Al-Madinah to Tabuk, the Muslims were being trained for future battle against the Romans, battles that would take place after the Prophet's death. After spending 20 nights at Tabuk, the Muslim army left for Al-Madinah. तो यानी जब अभी जंग नहीं हो रही है तो क्या वो लेजी हो गए, रेस्ट कर रहे हैं? नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब देखें कि ये ट्रेनिंग, अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को एजुकेट करते रहना, अपने आप को अपग्रेड करते रहना कितना जरूरी है इंसान के लिए। एंड इफ यू से यू आर अ बिलीवर, इफ यू से यू आर अ मुस्लिम, आपका आज का दिन जो है वो आपके कल के दिन से जो है वो कम होना चाहिए। मसलन एवरी डे की प्रोग्रेस होनी चाहिए। आपका जो गुजरा हुआ कल है वो आपके आज के कल से थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। यानी एवरी डे आपको प्रोग्रेस करना है हर लिहाज में, इल्म में, अमल में, आपके इखलाक में, आपकी जद्दोजहद में, आपके हेल्थ, आपके मेंटल स्टेट, हर एक एंगल, हर एक लेवल पर आपको एक प्रोग्रेस करते जाना है। बैठे हैं एक जगह पे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रिलैक्स कंफर्ट जोन में एंजॉय कर रहे हैं, रिक्रिएशन चल रही है, ये हमारे जीने का मकसद नहीं होना है। इसीलिए हमेशा अपने बॉडी को, अपने दिमाग को आप कीप इट रनिंग, जितना चलता रहेगा फिरता रहेगा उतना मेंटेन रहेगा। जहां आप रुक गए वहां आप जम गए। सो इन लोगों ने क्या किया? ये आर्मी बैठी नहीं थी, आर्मी ट्रेन कर रही थी अपने आप को, फ्यूचर बैटल्स के लिए ट्रेन कर रही थी। और इन्हें पता था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवेयर कि सिर्फ ये जंग उनके वफात के बाद भी रोमन्स के साथ जो जंग होगी उसके लिए दे हैव टू बी रेडी, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो तकरीबन 20 रातें ये तबुक में थे और उसके बाद फिर मदीना लौटे। और फाइनली फिर 11th हिजरी को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबीज को इन्फॉर्म किया कि वो रोमन्स के साथ
लड़ने के लिए अल बल्का और पैलेस्टाइन में आर्मीज भेज रहे हैं. Among those who were prepared to go were the most eminent members of the Muhajirun and the Ansars. तो ये जो आर्मी की वो थी, डिवीजन थी, यानी जो ग्रुप्स जो दो थे उसमें मुहाजिरुन और अंसार दोनों के थे. And in a decision that surprised many of them, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam appointed a very young man, Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, to lead the army. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अपना विजन, एक अपनी हिकमत, एक अपनी बसीरत हुआ करती थी. तो उन्होंने क्या किया, इतना इंपॉर्टेंट मिशन था, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन के साथ लड़ना था. लेकिन इसका लीडर कौन था? एक बहुत यंग, जिनका नाम था उसामा इब्न ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु, उनको लीड करने के लिए अपॉइंट किया. अल हाफिज इब्न हाजर रदियल्लाहु अन्हु wrote, it is reported that Usama's army was completely ready on a Saturday, 2 days before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died. यानी ये उसामा की जो आर्मी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे को वफात पा गए थे, राइट? तो सैटरडे को बिल्कुल ये आर्मी तैयार थी. But the actual preparations for the expedition began much earlier, prior even to the final illness of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. लेकिन ये जंग की जो आर्मी की जो तैयारी थी, ये उनकी बीमारी से भी पहले से चल रही थी. यानी it was a well planned, well established army. In fact, it was at the end of the month of Safar that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first exhorted his people to get ready to attack the Romans. यानी सफर के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को आइडिया दे दिया था कि आर्मी को तैयार करना है रोम के साथ अटैक करने के लिए. Later on, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam summoned Usama radhiyallahu anhu and said to him, उन्होंने फिर उसामा को बुलाया और कहा, go to where your father was killed and trample them, the enemy down with your horses. For indeed, I have placed you in a charge of this army. अभी उसामा रदियल्लाहु अन्हु के जो फादर थे, उनको इन लोगों ने कत्ल किया था. तो अभी ये देखें कैसे इंस्पायर करते हैं, कैसे एनकरेज करते हैं. उन्होंने कहा कि जाओ जहां पर तुम्हारे बाबा का कत्ल हुआ था, अब इनको तुम अपने घोड़ों से कुचलो, और हाँ, मैंने तुमको एक बड़ी आर्मी का इंचार्ज बनाया है. Some people voiced their skepticism at Usama's appointment because he was young and relatively inexperienced. Of course, कुछ लोग जो थे उनकी ओपिनियन ये थी कि बहुत यंग है और inexperienced है. Furthermore, the army consisted of men who had fought alongside the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in many previous battles and who had proven their worth. यानी अभी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग आर्मी में थे. Even Abu Bakr radiallahu anhu and Umar radiallahu anhu were part of the army. अब आप सोचें, इतने experienced, इतने trustworthy, इतने loyal लोग साथ में थे, फिर क्यों उसामा रदियल्लाहु अन्हु को चूज किया गया? What they did not understand was that it was not their place to question the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once he made a final decision. यानी कई बार ऐसा होता है ना कि आपको अपने लीडर को ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आमिर को ट्रस्ट करना पड़ेगा. कई बार हमारी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे डिसीजंस होते हैं कि हमारे पेरेंट्स किसी लड़के को सिलेक्ट करते हैं या हमारे लिए कुछ चूज करते हैं, तो उसको हम क्रॉस क्वेश्चन या उसको डाउट करने के बजाय हमें उन पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो हैं जो आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं. सो यू कैन नॉट डाउट इट, यू कैन नॉट क्रॉस क्वेश्चन इट. ठीक है, क्योंकि आपकी जो समझ है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर उनकी समझ है. दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड दे हैव देयर ओन विजडम एंड विजन. उसी तरीके से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई डिसीजन लिया है, तो पहले इन लोगों को ऐसा डाउट या सवाल इनके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए था. स्टिल उन्होंने एक पॉइंट क्लियर किया. क्या कहा उन्होंने? If you are critical of his leadership, well, then you were also critical of his father's leadership in the past. By Allah, he was indeed worthy of being a leader, and he was among the most beloved of people to me. And now that he has departed from this world, for Zayd radiallahu anhu had been martyred in the previous battle, this one, Usama, is among the most beloved of people to me. यानी उन्होंने कहा कि आप अगर इसके लीडरशिप के ऊपर आप शक शुबा करते हो, तो आप इसके बाबा के लीडरशिप के ऊपर भी शक शुबा आपने किया होगा पास्ट में. लेकिन now नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is saying कि he was indeed worthy, वो एक लीडर के लायक थे और वो मेरे दिल के बहुत करीब थे. अब जब वो नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं, तो ये यानी वो ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु की बात कर रहे थे. वो कहते हैं कि ये उसामा रदियल्लाहु अन्हु भी मेरे लिए बहुत बिलवड है, मेरे दिल के बहुत करीब है. एंड ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज डिसाइडेड and he knows the worth of a person, so definitely he thinks if he is worthy of being a leader, then definitely he is worthy of being a leader.
2 days after the preparation had began for Usama's army, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fell ill. This was not a mild case of cold or fever. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was seriously ill and his pain intensified. अभी 2 दिन पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तबीयत खराब हो गई, और ये नॉर्मल बुखार खांसी वाला किस्सा नहीं था, ये बहुत सीरियस मैटर था, तो इसमें इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उनको तकलीफ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे. अब इसी वजह से ये जो अटैक, रोम पे अटैक करने का जो प्लान था, वो थोड़ा सा डामाडोल हो रहा था. अब क्या हुआ, उसामा की आर्मी जो है वो आज शाम के लिए रवाना हो गई, और वो एक जगह है जिसका नाम है अल जुर्फ, जो 3 माइल नॉर्थ में है मदीना के. तो वो लोग उधर अपना उन्होंने कैंप किया हुआ था. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो उसामा रदियल्लाहु अन्हु मदीना वापस आए. With the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a great many Arabs in neighboring lands apostatized. Many became followers of false prophets and others refused to pay zakah. अब ये होते ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होते ही क्या हो गया, बहुत सारे जो नेबरिंग अरब्स थे वो दोबारा से क्या कहते हैं उसको, दीन को छोड़ के मुर्तद हो गए. कुछ जो है वो झूठे नबियों के पीछे भागने लगे, कुछ जो है उन्होंने वो ज़का पे करना बंद कर दिया, यानी थोड़ी सी गहमा गहमी शुरू हो गई. Aisha radhiyallahu anha described the chaos that ensued when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam died. All Arabs apostatized and hypocrisy raised its head everywhere. यानी मुनाफिकत और कुफर जो है वो आम होने लगा. By Allah, what descended upon me, according to another narration, she didn't say me, but my father was so severe that were it to descend upon firm and unshakable mountains, it would have crushed them. यानी ये ऐसा जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी मुसीबत अगर ये पहाड़ों पे आती तो ये रेजा रेजा हो जाते. With so many apostates to deal with throughout the peninsula, the Muslims had to ask themselves whether they could afford to send Usama's army to battle the Romans. अब ये सोचने पे मजबूर हो गए कि जब इंटरनली ऐसी बुरे हालात चल रहे मुस्लिम नेशन में, तो क्या ये ठीक होगा कि उसामा की आर्मी को भेजा जाए रोमन से लड़ने के लिए. Despite the Muslims' need for extra fighters, Abu Bakr radhiyallahu anhu asked a man to make the following announcement only 3 days after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died. लेकिन अबू बकर ने क्या किया, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने जैसे ही 3 दिन गुजर गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि उसामा की आर्मी को जो है जाने दिया जाए और अपना मिशन जो है वो कंप्लीट करने दिया जाए. Let no member of Usama's army spend this night in Al-Madinah. Let each one of them leave immediately for his encampment in Al-Jurf. उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं रुको और अपना जो उनका काफिला जहां जुर्फ में लगाया था उनका कैंप, उधर लेकर पहुंचो. After this announcement was made, Abu Bakr radhiyallahu anhu stood before the people, praised and glorified Allah, and then said, "O people, I am like you, and I do not know, perhaps you will heap upon my responsibility, which only the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was able to bear." अभी वो अपने लोगों को एड्रेस करने लगे. एंड एज यूजुअल पहले अल्लाह ताला की हम्द सना की और फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि मेरे पीपल, मैं आप लोगों की तरह हूँ, ऐ मेरे लोग, मैं आप लोगों की तरह हूँ, और आप लोग जो हैं, यानी जो मुझ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पे डाली हुई है उसको आप अंडरस्टैंड कर पाओ. Verily Allah chose Muhammad from among all living beings. अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों में चूज किया और उनको प्रोटेक्ट किया फ्रॉम डिफेक्ट्स एंड एरर्स. एंड एज फॉर मी, आई एम नॉट एन इनोवेटर. मैं बिदा करने वालों में से नहीं हूँ, मैं सिर्फ इत्तिबा करने वालों में से हूँ. If I become upright in my affairs and in the way I rule over you, then follow me. अगर मैं भी, यानी मैं बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ, अपने मामलात मेरे बिल्कुल ठीक है, और अगर आप मुझे सही समझते हो तो मुझे फॉलो करो, लेकिन अगर मैं भटक जाऊं तो मुझे करेक्ट करो. जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम died, not a single person from this nation was able to claim that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had wronged him in the least. यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो कोई एक बंदा भी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कुछ गलत किया है. Lo, indeed the shaitan attacks me, so when he comes to me, stay away from me. फिर उन्होंने कहा, he is a normal, as I always say, कि he always exhibits normal human traits. तो वो कहते हैं अगर मुझ पे शैतान का अटैक हो तो मेरे करीब मत आओ, मुझे थोड़ा दूर कर दो. Verily there are some people who have forgotten their appointed terms, their death, and have worked for others instead of doing deeds for their own hereafter. फिर वो कह रहे हैं काफी सारे लोग जो ये भूल चुके हैं कि उन्होंने भी मौत का मजा चखना है
और वो जो है अपनी आखिरा की या कब्र की तैयारी के बजाय औरों के मामलात में दखल कर रहे हैं. So be aware of becoming like them. Work hard, be quick, seek out safety. अब ये जब twice and thrice कोई किसी वर्ड पे रिपीटेशन होता है, मतलब that is important. तो सबसे important क्या है? Work hard, मेहनत करो. Be quick, जल्दबाजी करो नेकी करने में, और अपनी सेफ्टी को जाके अपने आप को सेव करो. यानी For behind you is a quick pursuit, time of death. यानी आपका जो वक्त है वो बहुत महदूद है, बहुत लिमिटेड है, और आप धीरे धीरे थोड़े सेकंड्स में आप अपनी डेथ के करीब जा रहे हैं. बी विजिलेंट एंड रेडी फॉर डेथ. बिल्कुल चौकन्ना रहो और अपनी मौत के लिए तैयार रहो. एंड लर्न फ्रॉम द लेसन्स ऑफ योर फादर, सन्स एंड ब्रदर्स. और अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटों से कुछ लेसन्स लो. अल्लाह एक्सेप्ट्स ओनली दोज डीड्स दैट आर डन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. तो ये हमको अच्छी तरह से पता है कि इखलास एंड नबी की इत्तबा के अलावा कोई भी अमल जो है किया जाए इन दोनों कंडीशंस के बगैर तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. तो अपने अमल जो है वो इस लिहाज से किया करो. बी सिंसियर फॉर द टाइम इज द की. आप ये सोच लें, हम अगर ये सोचे कि हम नेकी का काम कल करेंगे, पता नहीं आज रात ही मौत हो जाए नौजुबिल्ला, तो आपको जो है अपनी मौत के लिए बिल्कुल तैयार रहना है और अच्छे काम, नेकियों के काम को कल पे नहीं डालना है. कल करे सो आज करे सो अब. when you will be poor and needy, when you will be in need of rewards in the hereafter. यानी आपको पता है अच्छी तरह से ना कि वो 5 चीजों के जो सवाल जवाब होगा, तो उसके लिए आप जो है बिल्कुल तैयारी रखें. और जो वाइज आदमी होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता है इससे पहले कि वो, यानी फरागत का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है इससे पहले कि वो बिजी हो जाए. वो अपनी जवानी का इस्तेमाल करता है इससे पहले कि वो बूढ़ा हो जाए. वो अपने माल का इस्तेमाल करता है इससे पहले कि वो गरीब हो जाए. वो अपनी हयाती का इस्तेमाल करता है इससे पहले कि उसके ऊपर मौत आ जाए. तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये आपके पास आज है, कल इसकी कोई गारंटी नहीं है. आज है, अपने हाथ से चैरिटी कर दी, आज टाइम है एक्स्ट्रा नफीलें पढ़ ली, आज टाइम है नेकी के अंदर भागदौड़ करें, अपने आप को वक्फ कर दें. O slaves of Allah, learn a lesson from those among you who have died. जो मर गए हैं उनसे लेसन्स लीजिए और उस पर तदब्बुर करिए. Think where were they yesterday. अब कल जो मर गए हैं वो कहाँ थे. यानी अभी हम लोग हर रमजान में I want to think like this. ये रमजान जो इस साल का हमने गुजार लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारी नेकियों को, हमारी इबादत को, हमारी दुआओं को कबूल करे. बट हम में से किसी को गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट रमजान तक हम जिंदा रहते हैं. इसीलिए ये बात को हमेशा ध्यान रखते हुए चलना है कि हमारी मौत हमारा पीछा कर रही है. Where are the tyrants who were known for their victories in the war was that waged? कहाँ है वो जालिम जिन्होंने अपनी, यानी उन्होंने घमंड और तकब्बुर में जंगें जीती हैं, कहाँ है आज वो. Time has caused them to waste away. Now their bodies are rotten and decayed. वक्त गुजर गया, उनकी जो जिस्म है, जो बॉडीज हैं, वो गल सड़ गई हैं. और कहाँ है कल के राजा, कहाँ है उनके वो लैंड्स और उनकी बिल्डिंग्स और वो शानदार चीजें. सब दूर हैं, बस सिर्फ यादें बनकर रह गई हैं. बट दे डोंट एग्जिस्ट इन रियलिटी. They are really non-existent. For Allah, the possessor of might and majesty, has kept alive for them the consequences of their actions. यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उनको तो नेस्तो नाबूद कर दिया, उनकी टेरिटरीज, उनकी डायनेस्टीज, उनकी बिल्डिंग्स को, लेकिन उनकी एक्शन और जो एक्शन उनके रिजल्ट्स थे, यानी उनके डीड्स के जो रिजल्ट्स थे, वो हमारे सामने एक इबरत के तौर पे मौजूद हैं. Though he has cut off from them their desires, now they are gone. Their deeds remain theirs. Though the world which they once claimed to own has fallen into the hands of others. यानी आप देख लें, बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा रिच आदमी, बड़े से बड़ा लीडर, एक शय भी अपने कब्र में नहीं ले जा सकता, और आखिर में क्या बन के रह जाता है, सिर्फ मिट्टी. Now here we are as their successors on earth. If we truly learn from them, we will be saved. हमें जो समझदार आदमी है वो ये सारी चीजों से इबरत लेता है. But if we sink to the depths and ways, we will be just like them. Where are the beautiful faced ones who were so enamored with their youth? कहाँ है वो खूबसूरत चेहरे जिन्हें अपनी जवानी पे बहुत घमंड था. वो भी क्या हो गए, डस्ट हो गए, मिट्टी हो गए. And the things regarding which they were negligent have become a cause of misery for them. और वो सारी चीजें जिसके ऊपर वो गफलत करते थे, यानी उन्होंने दरगुजर किया, और वही चीजें जो हैं उनके लिए बवाल बन के रह गई आज. यानी कुछ लोग जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग कि अगर अपनी इबादत का, अपनी पाकिज़गी का, अपनी तहारत का, छोटी छोटी चीजों का अगर जो ख्याल नहीं रखते, जो नेग्लिजेंट है, जो गाफिल है उससे,
तो आखिर में वही चीज उनके लिए बवाल बन के रह गई. Where are the kings who built cities, fortified them with walls and built wondrous things inside them? They have left all of that for those who came after them. यानी उन्होंने तो बड़े बड़े castles, building, kingdoms ये सब बनाए, मरने के बाद उनके लिए नहीं, उनके बाद जो है उनके लिए थी, और वो भी अपने कब्रों में नहीं ले जाने वाले. You're going to see that. आखिर में कब्र में जाने वाली चीज क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपके अमाल. Their homes are empty while they are now in the darkness of their graves. अब उनके जो घर है वो खाली हैं और उनकी कब्रों के अंदर अंधेरा है. इट्स वेरी स्कैरी एक्चुअली. ये सारी जो एक फुल 1 पेज की उनकी पूरी स्पीच थी जो मैंने रीड की अभी, लेकिन इट इज वेरी स्कैरी. जो जो चीजों से उन्होंने वार्न किया है हमारे लिए, एक बहुत सारे लेसन्स हैं इसके अंदर, कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कब्र की तैयारी करें, सिर्फ और सिर्फ अपने कब्र को उजागर करने वाले काम करें, वहां पर जो आसानी हो उसके बारे में सोचिए. अब आप लोगों में से, लाइक जस्ट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कब्र, आई विल जस्ट मेंशन वन थिंग. या आप लोगों में से कौन है वो जो पाबंदी से इशा के बाद या रात को जो है, रात के अस्कार में सूरतुल मुल्क है, आप लोग पढ़ते हो? अगर नहीं पढ़ते तो प्लीज स्टार्ट कर दें. इट्स अ वेरी शॉर्ट ब्यूटीफुल सूरा. इशा के बाद सूरतुल मुल्क पढ़ा करें. दैट हेल्प्स यू फॉर योर कंडीशन इन द ग्रेव. और फिर इधर देयर इज अ रेफरेंस ऑफ कुरान फ्रॉम सूरा नंबर 19 वर्स नंबर 98. एंड हाउ मेनी अ जनरेशन बिफोर देम हैव वी डिस्ट्रॉयड, कैन यू ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइंड अ सिंगल वन ऑफ देम or hear even a whisper of them? Nothing. Yes, Fatima, please go ahead. Sorry, Salma बोल रहे हैं. हाँ सलमा बोले. आप भी sorry, which surah you said? Ishabad? You didn't mention Mulk. Surah Mulk, Surah Mulk. Mulk only ना? Okay, Yeah, okay, yeah. I couldn't hear. ठीक. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. फील नाइस अबाउट इट, फील वेरी होपफुल अबाउट इट कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला विल गिव यू द अजर फॉर इट एंड एक्सेप्ट इट. लेकिन जो लोग नहीं करते उनके लिए रिमाइंडर. Okay, Husna has written, subhanallah, same thing I was telling my daughter this morning, though we are constantly talking with each other. Yes, Husna, this is definitely one thing we have to do. Communication हमको maintain करना है, but make sure कि हम लोग जो है ना उसको overdo नहीं करें. क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज mention करना चाहती हूँ कि खासतौर से mother daughters की जो बात अगर हम करें कि माशाल्लाह वो इतना एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, इतना कांटेक्ट में रहते हैं, इतना कम्युनिकेट करते हैं कि कई बार जो नहीं कम्युनिकेट करना चाहिए वो भी कम्युनिकेट कर देते हैं. मसलन द मदर्स आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर डॉटर्स, तो वो जो है वो पूरे की पूरी डिटेल लेना चाहती हैं कि भाई उसके हस्बैंड के साथ और उसके ससुराल वालों के साथ क्या चल रहा है. आउट ऑफ कंसर्न वो पूछती हैं, एंड आउट ऑफ लव बेटी साहिबा भी पूरा इंफॉर्मेशन मॉम को देती हैं, और कई बार मॉम की इंटरफेरेंसेस से घर खराब हो जाता है. तो प्लीज मेक श्योर कि आप कम्युनिकेट करें, मगर वो भी हुदूद में रहकर. ओवर कम्युनिकेशन और अंडर कम्युनिकेशन इज अ प्रॉब्लम. एनीथिंग, कोई भी चीज जो है वो एक हद में अच्छी रहती है. आप एक्सरसाइज करो, हद में करो. आप खाना खाओ, हद में करो. आप सो, हद में करो. एक्स्ट्रा कुछ भी आप करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन दैट कि कम्युनिकेट करें बट ओवर कम्युनिकेट ना करें. अपनी नाक हर किसी के मामलात में ना घुसाएं. डोंट interfere in others matters if it doesn't concern you, and at times even if it concerns you, make sure कि आपके बाद से किसी का घर खराब ना हो, कोई ऑफेंड ना हो, किसी के अंदर गम ना पैदा हो जाए, कोई होपलेस ना हो जाए, because words are very 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 powerful, so use it wisely. I think it's about time. Any questions, anything to be discussed? Open forum. Actually उनकी जो स्पीच है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी और हाफ अ पेज की रहती है. इंशाल्लाह विल टेक इट टुमारो. कोई डिस्कशन करना चाहता है, कुछ कोई क्वेश्चन? इंशाल्लाह then we'll continue tomorrow. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व जज़ाकल्लाहु रहमतुल्लाहि खैर.